orifice. बेटा डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस डिस्कस करेंगे. नाउ देखिए बेटा ओरिफिस क्या होता है. इट इज ए स्मॉल ओपनिंग. ओरिफिस इज ए स्मॉल ओपनिंग. और टैंक में कहीं हमने स्मॉल ओपनिंग बना रखी है, उससे जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है एंड इट इज फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ. देखिए बेटा किस तरह, ये बेटा हमारे पास एक टैंक है, फ्लूइड टैंक, एंड दिस इज द ओरिफिस. This is the central line of the orifice. This is the central line of the orifice, and we are having liquid till a height h above this orifice. इससे इस ओरिफिस के सेंटर से जो हाइट है लिक्विड की, that is h, and liquid is getting discharged from this particular orifice. इस तरह से फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है. आप देखिए बेटा, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. इस सेक्शन पर हम देखना चाह रहे हैं कि फ्लूइड की क्या वेलोसिटी है. आप देखिए बेटा होता क्या है, किस तरह का डिस्चार्ज पैटर्न जो ओरिफिस के बाहर किस तरह का डिस्चार्ज पैटर्न बनता है. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. देखिए बेटा ओरिफिस के बाहर कुछ इस तरह का डिस्चार्ज पैटर्न बनता है. इट इज समवट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए डिस्चार्ज पैटर्न. यानी कि फ्लूइड लाइंस कहीं यहां पर जाकर पैरेलल हो जाती हैं. तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली इट इज ए स्ट्रीमलाइन फ्लो. यहां पे एक ऐसा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है लगभग. आप देखिए बेटा इस पर्टिकुलर सेक्शन पर 1 डैश पर we want to find that what is the velocity of the fluid at this particular section. अब देखिए बेटा यहां पे क्या है, we can apply Bernoulli principle because this level and this level they are at same level. So बेटा हमने अगर यहां पर velocity पता करनी है, so I can make two sections, 1 dash and let us say this is 2 dash. दोनों सेक्शन कैसे हैं, सेम लेवल पर हैं. और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में द वैल्यू ऑफ द पाइप और द फ्लो is considered to be horizontal. There is no level difference between the two. 1 and 2 dash situation, there is no level difference. कोई level difference नहीं है बेटा. अब आप देखिए इस पर जितनी फ्लूइड की एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड at section 1 dash is equal to total energy of the fluid at section 2 dash. So जो total energy है वो fixed है 1 dash और 2 dash पर. अब देखिए बेटा now total energy at section 1 is equal to total energy at section 2. now atmospheric pressure इधर भी है और atmospheric pressure इधर भी है. now we are going to look at what is the pressure energy. We will be taking the energy per unit volume. हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे बेटा. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करके की इक्वेशन मैं आपको लिख के बता रहा हूं, दैट इज P प्रेशर प्लस हाफ रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच. Now this is the potential head. अब बेटा पोटेंशियल हेड की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है. क्यों? बिकॉज दोनों एक ही लेवल पर हैं. 1 और 2 आर एट द सेम लेवल. 1 dash and 2 dash are at the same level. So we don't require the potential energy or the potential energy per unit volume in this particular problem. तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ प्रेशर और we need the kinetic energy. This is a constant. Now we will be considering at 1 dash and at 2 dash we will be equating both of them. तो दोनों को इक्वेट करेंगे कैसे बेटा? P1 plus, now at section 1 the pressure P1 will be pressure atmospheric plus the hydrostatic pressure, that is equal to H rho g, Pa plus H rho g.
and there is no velocity of the liquid here, so kinetic head is 0, kinetic energy is 0. और बेटा इस साइड पर क्या है, 2 सेक्शन पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA प्लस द kinetic energy plus the kinetic energy per unit volume, that is equal to half rho V square. Now this you cancel out. Now देखिए बेटा H into rho into G is equal to half rho V square. Now you cancel out rho with rho. Now this will be velocity is equal to root of 2gh. Now this is the velocity of the fluid at the outlet, या streamline flow में at the outlet beta velocity is equal to root of 2gh. Now if supposing somebody asks me what is the discharge through the orifice, मैं बेटा discharge निकालना चाहता हूँ through the orifice. Now what is discharge? Discharge is volume per unit time. Discharge is volume per unit time. अब देखिए बेटा, the let us say that area of the orifice is A. A is the area of the orifice. Now Q is discharge. So discharge is equal to area into velocity. Now area is A and velocity you have already found out, that is root of 2gh. So this is equal to A times root 2gh. This is discharge Q. Discharge is also denoted by V bar, that is volume flowing per unit time. Now देखिए बेटा, ये हमने डिस्चार्ज का फॉर्मूला डिस्कस किया. ना देखिए वेलोसिटी आपको पता लग गई. दिस इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. Velocity of efflux, we also call this as velocity of efflux. This region जहां पर कि लिक्विड इकट्ठा हो गया फिर फैला, इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा. नाउ बेटा आपने देखा कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो था that is equal to square root of 2gh, यानी कि velocity is directly proportional to, यानी कि velocity is directly proportional to square root of h. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आपका h कम होगा, यानी कि ओरिफिस के ऊपर पानी का लेवल कम होगा, तो वेलोसिटी भी कम होगा. लेकिन अगर ऊपर जो हेड है, यानी कि जो लेवल है लिक्विड का, वो यदि ज्यादा होगा, यानी h ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगा. सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h. नाउ देखिए बेटा, ये हमने देखा. नाउ क्वेश्चन है एक, इस पे बड़ा पेक्यूलर था. नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस. देखिए, डज a particle dropped from a height h, does a particle dropped from a height h has the same velocity as that for fluid discharge through an orifice. Now बेटे, अगर हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया हाइट h से, उसका वेलोसिटी और जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, जो उस लिक्विड का डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू ओरिफिस, उसका वेलोसिटी क्या सेम है? देखते हैं बेटा. ये देखिए, ये बिल्डिंग है h हाइट की, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0,
इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा विथ सर्टेन वेलोसिटी. नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square plus 2gh. u 0. So velocity at the lowest point is root of 2gh. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज ट्रू दैट बेटा जो लोवेस्ट पॉइंट है ग्राउंड पर, अगर एक पार्टिकल हमने हाइट h से ड्रॉप किया तो ग्राउंड पर पहुंचते वक्त उसके पास वेलोसिटी √2gh होगी, और यही वेलोसिटी है इफ्लक्स की. यदि ओरिफिस से h लेवल हो पानी का, देन अगेन द वेलोसिटी इज √2gh. अगेन द वेलोसिटी इज √2gh. अब एक और क्वेश्चन बेटा इसी में ही ओरिफिस में ही, डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस में एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ. नाउ बेटा हमारे पास ये एक टैंक है. ये बेटा एक टैंक है. नाउ दिस इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे पड़ा है. यहां पे हमने लिक्विड h हाइट तक भर रखा है, कैपिटल H हाइट तक लिक्विड भर रखा है. एक बच्चे को कहा कि इस टैंक में कहीं छेद कर दे बेटा. उसने कहा यहां भी हो सकता है छेद, तो छेद यहां भी हो सकता है, यहां भी ओरिफिस बन सकता है, कहीं भी बन सकता है. लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है बेटे आप छेद करोगे इस टैंक में जहां मर्जी, पानी तो निकल आएगा, लेकिन यहां करोगे तो नहीं निकलेगा. ठीक है, अब पानी निकलेगा तो कुछ इस तरह से ग्राउंड पे जाएगा. सवाल ये है कि ये छेद किस हाइट पे किया जाए, ये छेद किस हाइट पे किया जाए कि जो लिक्विड है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे ग्राउंड पर. ये डिस्टेंस मैक्सिमम करना हमने बेटा. ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल ही है, और हमें ये पता करना है कि ये ओरिफिस यानी कि जो होल हमने इस टैंक में करना है वो कहां किया जाए कि मैक्सिमम दूरी पर ग्राउंड पे जो पानी है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे. ठीक है बेटे. नाउ देखिए ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे अब हम. मान लीजिए कि आपने जो लिक्विड का फ्री सरफेस है उससे स्मॉल h नीचे जाकर होल कर दिया, ओरिफिस बना दिया. आपने लिक्विड के फ्री सरफेस से स्मॉल h नीचे जाकर टैंक में ओरिफिस कर दिया, ओरिफिस बना दिया, और यहां से लिक्विड निकल रहा है और हमने इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू मैक्सिमाइज दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अब हम इसका डिस्कशन करेंगे. देखो बेटा अगर ये हाइट h है तो यहां से बॉटम से टैंक के कितनी हो गई ये हाइट, ये टोटल h, ये स्मॉल h, तो ये h माइनस h. Now what is velocity of the fluid at this point? इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी v is equal to √2gh. velocity v is equal to √2gh. Now बेटा हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है. To calculate this horizontal distance, I need to calculate कि कितने टाइम में यहां से यहां तक फ्लूइड पहुंचेगा. मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिक्विड की पता है. अब देखिए बेटा v is √2gh. अब ये दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं आप. अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है. अब देखो बेटे ये हाइट कितनी है, h माइनस h is equal to, using the second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square. इसको यूज करने पर h माइनस h is equal to half gt का स्क्वायर. So t is equal to 2 times
H माइनस एच अपॉन जी स्क्वायर रूट। ये आ गया क्या? टाइम फॉर द वाटर टू रीच टू द ग्राउंड। ये टाइम लगा पानी को ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। नाउ लेट अस से दैट दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर इज x। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है बेटे? x। नाउ अगर आपने ये x निकालना है, आपको पता है ये x डिस्टेंस किस वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, दैट इज बाय रूट 2gh। सो दैट मीन्स x बेटा x इज इक्वल टू u इंटू टी। तो v इंटू टी, v कितना हो गया? रूट 2gh इंटू रूट ऑफ 2 टाइम्स h माइनस h अपॉन g। ये क्या हो जाएगा बेटे? दिस विल बी 2, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज 2, 2 टाइम्स रूट जी कैंसल्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h times square root of small h into capital H minus small h under the root. Now this is x, this is x, that is the horizontal distance, this is the horizontal distance x. अब देखो बेटे, now we want to maximize this h, we wish to maximize this particular h. इस h को हम लोग मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमाइज करने के लिए dx by dh should be 0 because h is a variable with respect to x. X varies as you change h. So this is how you define the variable. So we need dx by dh is equal to 0. अब देखो बेटा इसका डेरिवेटिव करो जरा, ये हो जाएगा, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 कॉमन आ गया इंटू 1/2 टाइम्स रूट ऑफ h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू d by dh of h इंटू h माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नो बेटा ये टर्म तो टोटली ये 2 कैंसल, ये उधर जाकर 0 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो फर्स्ट ये वाला कांस्टेंट आ गया इंटू डी बाई डी एच ऑफ एच इज 1 माइनस डी बाई डी एच ऑफ एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 2, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बिल्कुल मिडल में, टैंक के बीचों बीच मिडल में क्या करेंगे, you have a hole, then through that orifice the water will reach maximum horizontal distance. Maximum horizontal distance will be reached at if you have a hole at the middle of the tank. बेटा orifice को middle में करना चाहिए so that the water reaches at maximum horizontal distance. So h is equal to h by 2. तो असाइनमेंट्स निकाल लीजिए बेटा, और वी आर स्टार्टिंग विद द असाइनमेंट्स। टोटल डिस्कशन मैंने आपके साथ करी फॉर इलास्टिसिटी, दैट इज टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सरफेस टेंशन, फ्लूइड्स और फ्लूइड फ्लो डिस्कस किया हमने बेटा, और फ्लूइड की नेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज हमने डिस्कस किए, रेनॉल्ड नंबर डिस्कस किया, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स कंप्लीटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक, वी विल स्टार्टिंग विद द असाइनमेंट्स, और असाइनमेंट्स में मैंने सारी की सारी प्रॉब्लम्स मिक्स करके डाली हुई हैं। सो वन बाय वन वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। सो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1, what is the ratio of number of molecules of oxygen and hydrogen in 1 gram of the gas at same temperature and pressure, at same temperature and pressure. So देखो बेटा हमने रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन 1 ग्राम ऑफ द गैस
at same temperature and pressure. आपको ये पता होना चाहिए कि 32 ग्राम्स, देखिए एक ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने बेटे एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं. एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 into 10 power 23. Now 1 gram will have these many, 1 gram of oxygen will have these many molecules. अब बेटे हाइड्रोजन भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है. सो हाइड्रोजन के 2 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर जितने 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज वी से ग्राम मॉलिक्यूलर मास is equal to Avogadro number. So 2 gram of hydrogen have Avogadro number of molecules. So 1 gram will have n by 2. Now 1 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसमें आपने रेशो पूछी गई है हमसे, रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 gram O2 by ratio of molecules in 1 gram hydrogen is given by n upon 32 by n by 2. So that is equal to 1:16. Answer is 1:16. So answer देखिए बेटा, answer is C part. Answer is C part. Next बेटे second question. Question number 2. To increase Brownian motion, size of suspended particle must be reduced, temperature must be lowered, highly viscous fluid must be used, size of the particle must be decreased. Answer is beta, to increase the Brownian motion, the size of suspended particle must be reduced. Because अगर suspended particles का size कम कर दोगे, then what will happen? The Brownian motion will increase. Answer is A part. Answer is A part. Now next video, third question. The difference in the properties of a substance in 3 states of matter depends on difference in intermolecular force. B option दे रखी है बेटे difference in molecular shape. C option दे रखी है binding energy of atoms. D option दे रखी है none of these. So ऐसा बेटे 3 states है matter की, because we are studying properties of matter, so we should know about matter. There are 3 states of matter. One is solid, another is liquid, and the other one is gas. These are the 3 states of a solid. These are the 3 states of matter. So बेटा देखिए solid में intermolecular forces strong होती हैं, liquids में उससे कम होती हैं intermolecular forces of attraction, और सबसे least forces of attraction होती हैं gases में. So therefore in the basic difference between the properties of the substance in 3 states of matter depends on difference in the intermolecular forces. Answer is A part. Answer is A part. Next question bete, fourth question क्या कह रहा है? The shear modulus of a liquid is, A option है 1, B option है infinite, C option है 0, D option है some other finite value. So अब देखिए बेटा, हमने shear modulus की बात की है. Shear modulus होता है modulus of rigidity. Modulus of rigidity is shear stress by shear strain. एक लिक्विड में बेटा देखिए, लिक्विड में जो shearing है, shear stress पैदा होना है, that is negligible. shear stress जो पैदा होता है, that is negligible, because जो restoring force setup होती है, restoring tangential force setup होती है, that is negligible. So answer is 0. So answer is modulus of rigidity is, shear modulus is 0. Next bete, answer is C part. Next bete, fifth question. Next देखिए बेटा fifth question. Two identical wires of substances A and B are taken. Equal stretching forces are applied on them along the length.
it is observed that elongation of A is more than B. तो देखो बेटा हमारे पास दो आइडेंटिकल वायर्स हैं, यानी उनके सब्सटेंस आइडेंटिकल हैं, और क्या कह रहा है, देयर इज इक्वल स्ट्रेचिंग फोर्स, दोनों पे इक्वल स्ट्रेचिंग फोर्स लगाई, लेकिन नहीं, टू आइडेंटिकल वायर्स हैं बेटे, आइडेंटिकल वायर्स और सब्सटेंस अलग अलग हैं, आइडेंटिकल वायर्स हैं, सब्सटेंस अलग अलग हैं, एक है सब्सटेंस ए और दूसरा है सब्सटेंस बी, दोनों आइडेंटिकल हैं इन द सेंस ऑफ ज्योमेट्री, मतलब उनकी जो लेंथ है, उनका जो रेडियस है वो सेम है, बट दोनों वायर्स डिफरेंट मटेरियल्स की हैं, दोनों पे सेम स्ट्रेचिंग फोर्स लगाई गई, और हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि ए elongation ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, ए जो है वो ज्यादा खिंच जाती है इन कंपैरिजन टू बी। तो आपको पता करना है विच इज मोर इलास्टिक। बेटा अगर ए ज्यादा खिंच गई है बी के मुकाबले, तो इसका मतलब है ए में रिस्टोरिंग फोर्स कम है, ठीक है बेटे, ए में रिस्टोरिंग फोर्स कम है। यदि ए में रिस्टोरिंग फोर्स कम है, देन इट मीन्स टू से दैट, इसका मतलब क्या बनता है बेटे, इसका मतलब ये बनता है कि हल्की सी फोर्स पे ही वो स्ट्रेच हो गई, इसका मतलब है उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। अगर उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, सो ए इज लेस इलास्टिक, ए इज लेस इलास्टिक। सो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, बी इज मोर इलास्टिक देन ए, बी इज मोर इलास्टिक देन ए। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। The length of a elastic spring is a meter when tension is 4 Newton and is b meter when tension is 5 Newton. The length in meter when the tension is 9 Newton is. So देखो बेटे हमारे को ये कह रहा है the length of a elastic spring is a meter when the tension is 4 Newton. अगर टेंशन 4 न्यूटन थी तो इलास्टिक स्प्रिंग की लेंथ हो गई ए मीटर, अगर टेंशन 5 न्यूटन थी तो लेंथ हो गई बी मीटर, और हमने क्या पता करना है, लेंथ इन मीटर व्हेन द टेंशन इज 9 न्यूटन, कितनी लेंथ होगी व्हेन द टेंशन इज 9 न्यूटन। आप देखो बेटे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू नीड टू यूज दिस एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एक्सटेंशन, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एक्सटेंशन। अब पहले बारी जो स्प्रिंग में फोर्स थी, टेंशन थी, वो 4 थी, 4 इज इक्वल टू के टाइम्स, अब देखिए लेट अस से ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल, तो एलोंगेशन कितनी हुई, अब लेंथ दे रहा है वो ए मीटर, तो इसका मतलब ए माइनस एल का एलोंगेशन हुआ बेटे। अब 5 न्यूटन ले लीजिए, 5 न्यूटन is equal to k times b minus l, is equal to k times b minus l। अच्छा बेटा 9 पे हमें पता नहीं what is the new length, so 9 न्यूटन की जब हमने फोर्स लगाई तो इसको हम बोल देते हैं k times, that is equal to k times, that is equal to k times। now let us say the final length is x, so x minus l। अब हमारा एम क्या है यहाँ पे निकालना, वी वांट टू फाइंड आउट x फ्रॉम दिस, ये क्वेश्चन हमें डेटा गिवन है और इसमें से हम लोग x निकालना चाह रहे हैं। तो क्योंकि बेटे हमने इसकी लेंथ निकालनी है व्हेन द एक्सटेंशन, व्हेन द टेंशन इन द स्प्रिंग इज 9 न्यूटन। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन में से what I will do, I will find the length L in terms of A and B। लेंथ L को मैं A और B की टर्म्स में निकाल लूंगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, और जो लेंथ L आई उस लेंथ L को यहां मतलब दो इक्वेशन फिर मैं ले लूंगा, K को एलिमिनेट कर दूंगा और वहां से X निकाल लूंगा। अब देखिए बेटा पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं सेकंड बाय 1, सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइड सेकंड इक्वेशन by the first one, तो आपके पास क्या आ जाता है बेटे 5 by 4 is equal to 5 by 4 is equal to b minus l over a minus l। तो ये कितना हो गया बेटे 5 times a minus 5 times l
इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी माइनस 4 टाइम्स एल। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, इधर हो जाएगा ये, अगर हम इधर ले गए 4l 5l माइनस 4l इज l इज इक्वल टू 5a माइनस 4b। सो ये हो गया, इधर ले आया मैं तो ये हो गया 5l माइनस 4l इज l, l इज इक्वल टू 5a माइनस 4b। सो ये हो गई लेंथ। नाउ देखिए बेटा ये हो गया l। अब आप ऐसा कीजिए, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। नाउ यू हैव गॉट l इन टर्म्स ऑफ a एंड b, डिवाइड द थर्ड इक्वेशन बाय द सेकंड इक्वेशन। थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे और फिर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा बेटा x माइनस एल ओवर b माइनस एल इज इक्वल टू 9/5 इज इक्वल टू 9/5। नाउ x माइनस एल इंटू 5 इज इक्वल टू ये बेटा 9 है, 9/5 इज इक्वल टू 9 इंटू बी माइनस एल। ये हो गया कितना बेटे 5x माइनस 5l इज इक्वल टू 9b माइनस 9l इज इक्वल टू 9b माइनस 9l। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे 5x इज इक्वल टू 9b माइनस 9l प्लस 5l इज इक्वल टू माइनस 4l। माइनस 9l प्लस 5l इज माइनस 4l। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे 5x इज इक्वल टू 9b माइनस 4 टाइम्स 5a माइनस 4b। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे 5x इज इक्वल टू 9b माइनस 20a माइनस प्लस 16b। सो ये हमारे पास हो गया बेटा कितना 25b माइनस 20a। दिस इज 5x। So this implies x is equal to 5b minus 4a. x is equal to 5b minus 4a. So बेटा ये देखिए 5b minus 4a. Yes. So आंसर हमारे पास क्या बनता है बेटे, आंसर इज सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट। प्रॉब्लम में जो आंसर है दैट इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। Question number 7. The length of a wire is increased by 1 mm on the application of a given load in a wire of same material but of length and radius half that of the first on application of same force. Extension produced is. So length of a wire is increased by 1 mm on the application of a given load. If the wire of the same material but of length and radius half that of the first, then the extension produced in it will be. So देखो बेटा अगर सेम मटेरियल की तारें हैं तो इसका मतलब क्या, यंग्स मॉडुलस सेम है। और एक तार जो हमारे पास पहली वाली तार है उसमें 1 mm का एक्सटेंशन है और जो दूसरी तार है उसकी लेंथ भी हाफ है। अगर इसकी लेंथ l है तो उसकी लेंथ l/2 है, अगर इसका रेडियस r है तो उसका रेडियस r/2 है। ठीक है बेटे, तो उसका रेडियस r/2 है, ये हमें दिया हुआ है। और हमने क्या पता करना है, वी वांट टू फाइंड कि भी इस तार में एक्सटेंशन कितनी होगी। यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए वी कंसीडर एज y एंड y। सो नाउ डेल्टा l इज इक्वल टू FL/A इंटू y और डेल्टा l डैश इज इक्वल टू F/L/2 F टाइम्स L/2 अपॉन, देखो बेटा इसका रेडियस हाफ है तो अगर इसका एरिया निकालोगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर का फैक्टर है तो इसलिए एरिया क्या हो जाएगा 1/4 यानी a/4। सो अब ये हो जाएगा इंटू y। तो ये देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा डेल्टा l डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा l। कैसे बेटे, ये हो जाएगा 4 ऊपर चला गया तो FL/AY रह गया, FL/AY डेल्टा l के बराबर है। सो इसका मतलब है डेल्टा l 1 mm है
तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा डेल्टा एल डैश, दैट इज इक्वल टू 2 mm। सो इसका मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज 2 mm। और बेटा देखिए 2 mm कितना है, आंसर है यहाँ पे हमारे पास चॉइस में, यस आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। A thick rope of rubber of density 1.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube and Young's modulus of 5 into 10 to the power 6 Newton per meter square, 8 meter in length, 8 meter in length, length is 8 meter, is hung from the ceiling of the room. The increase in length due to its own weight is. So देखो बेटा, इस particular situation में we know that increase in weight, increase in length delta L is equal to mgl over 2a into y, mgl over 2a into y। अब देखो बेटे, हमें इसमें मास नहीं दे रखा, पर वी आर गिवन द डेंसिटी, वी आर गिवन द यंग्स मॉडुलस, ठीक है, एंड वी आर गिवन द लेंथ L, ठीक है बेटे। नाउ डेंसिटी एज यू नो, now density as you know is equal to mass per unit volume, density is mass per unit volume। सो बेटा अब हम एक काम करेंगे, इसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे और L से डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन को यदि मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं तो L स्क्वायर आ जाता है ऊपर, और L से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा बेटा A इंटू L इंटू वाई। नाउ एरिया इंटू लेंथ, area of cross section into length is volume, so mass by volume is again density। so आपके पास बन गया फॉर्मूला rho g L square by 2 times y is delta L। so this will be equal to rho is 1.5 into 10 power 3 into g is beta 10 into L square, लेंथ कितनी है बेटा 8 का स्क्वायर बटा क्या चीज 2 times y is Young's modulus, that is 5 into 10 की पावर 6। बेटा अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू गेट द आंसर एज इंक्रीज इन लेंथ इज 9.6, इसको सॉल्व करने पर इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। सो आंसर हमारे पास है, आंसर इज चॉइस ए, आंसर इज चॉइस ए। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, a steel ring of radius r and cross section A is fitted onto a wooden disc of radius capital R. If Young's modulus of steel is y, then the force with which the steel ring is expanded is। so देखो बेटा ऐसा है कि हमारे पास एक स्टील रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसको हमने बेटा फिट करना है किस पे, वुडन डिस्क जिसका की रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस की वुडन डिस्क पे फिट करना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज वाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज वाई, देन द फोर्स विद विच द स्टील रिंग इज एक्सपेंडेड इज। तो कितनी फोर्स के साथ स्टील रिंग को एक्सपेंड किया जाए ये हमने देखना है। तो देखो बेटे वी नो दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाय ए इंटू वाई, यही होता बेटे। नाउ फोर्स कितनी हो गई, फोर्स इज इक्वल टू ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल, फोर्स इज इक्वल टू ए वाई बाय डेल्टा ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास अब देखिए एरिया तो हमको ए दे रखा है, वाई, अच्छा बेटे लेंथ कितनी हो गई
नाउ इसको हमने इंक्रीज करना है, मतलब चेंज इन लेंथ, यानी कि आपके पास आर रेडियस का रिंग था और इस रिंग का एक्सपेंशन होने के बाद, यानी कि इस पे जो फोर्स लगाई आपने, इसको स्ट्रेच कर दिया, तो इसका रेडियस कितना बन जाना चाहिए, कैपिटल आर। इसका रेडियस कितना बन जाना चाहिए, कैपिटल आर। सो बेटा इसमें चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस 2 पाई इंटू स्मॉल आर। ये चेंज इन लेंथ हो गया। क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस चेंज करी है, तो सरकमफ्रेंस और बाद में इतनी होगी, पहले इतनी थी, और अपॉन एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल सरकमफ्रेंस। तो इसका मतलब है 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू डेल्टा एल कितना हो गया बेटे, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई इंटू स्मॉल आर। सो ये देखिए बेटा 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया, a इंटू वाई बाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। a इंटू वाई बाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आंसर आप देखिएगा बेटे क्या बनता है, बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, the compressibility of water is 4 into 10 power minus 5 per unit atmospheric pressure. The decrease in volume of 1000 centimeter cube of water under a pressure of 1000 atmosphere will be. So देखो बेटे compressibility कितनी दे रखी है हमको, कि ये CGS यूनिट्स में है सब कुछ, तो 4 into 10 power minus 5 पर यूनिट एटमॉस्फेयर, और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम में डिक्रीज कितना है बेटे, द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 1000, अच्छा डिक्रीज इन वॉल्यूम हमने निकालना है बेटे, द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी कि ओरिजिनली हमें वॉल्यूम दे रखी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अंडर ए प्रेशर ऑफ 1000 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर कितना है बेटे, प्रेशर इज 1000 एटमॉस्फेयर विल बी। सो अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। नाउ के कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बाय बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाय बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो होता है ना बेटे, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, दैट इज प्रेशर अपॉन, प्रेशर जो है वो स्ट्रेस पैदा कर रहा है, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा वी बाय वी। तो अब आप देखिए बेटा ये हो जाएगा पी वी बाय डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू पी इंटू वी बाय डेल्टा वी। अब आप देखिए ये तो हुआ बेटा बल्क मॉडुलस, दिस इज बल्क मॉडुलस। नाउ कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉडुलस, यानी इसका रेसिप्रोकल डेल्टा वी बाय पी वी। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू पी वी के, दैट इज इक्वल टू पी वी के। अब प्रेशर आपके पास दे रखा है बेटा 1000 एटमॉस्फेयर, इनटू वॉल्यूम दे रखी है वो भी 1000 दे रखी है, कंप्रेसिबिलिटी के इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। ये आ गया बेटे कितना, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू 40, 40 आ जाएगा बेटे कैसे, ये हो गया 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर माइनस 5, ये हो गया 4 इंटू 10, दैट इज 40। आंसर इज 40 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 11th क्वेश्चन। Next is 11th question bete. The upper end of a wire 1 meter long and 4 centimeters radius is clamped. The lower end is twisted by an angle of 30 degree. The angle of shear is. So बेटा एक तार है, उसका लेंथ जो है that is 1 meter, उसका लेंथ L is 1 meter long और रेडियस उसका 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 बाई 100 मीटर, 4 सेंटीमीटर इज 4 बाई 100 ऑफ ए मीटर। अच्छा इसके बाद फिर बेटे क्या है, लोअर एंड इज ट्विस्टेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ शियर। सो आपको ये पता बेटे r इंटू थीटा इज इक्वल टू एल इंटू फाई। सो फाई कितना हो गया, r इंटू थीटा बाय एल। सो r कितना हो गया बेटे 4 बाई 100 into theta is 30 by L, L is 1,
तो ये कितना हो गया बेटे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 12/10, दैट इज 1.2 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1.2 डिग्री. आंसर इज 1.2 डिग्री. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 12th क्वेश्चन. नेक्स्ट वी गो इन फॉर 12th क्वेश्चन बेटे. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. A liquid does not wet the surface of a solid if the angle of contact is. So बेटे अगर एक लिक्विड एक सॉलिड के सरफेस को वेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है फोर्स ऑफ एडिशन इज पुअर बिटवीन द लिक्विड एंड दैट पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस. इन दैट केस the angle of contact is obtuse, that means greater than 90. That means angle of contact is greater than 90. So answer 12, answer is A part. Answer is A part. Next बेटे 13th question. 13th question देखेंगे. The angle of contact of mercury glass surface is. So जो angle of contact बन रहा है किसके बीच में, मरकरी और ग्लास के बीच में, वो ऑब्ट्यूज बनता है बेटे, एंड दैट इज 135 डिग्री. सो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मरकरी एंड ग्लास इज 135 डिग्री. आंसर क्या बनता है बेटे यहाँ पे, आंसर इज सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 14th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 14th क्वेश्चन. ड्रॉपलेट्स ऑफ ए लिक्विड आर यूजुअली मोर स्फेरिकल इन शेप then larger drops of same liquid because. ठीक है बेटे, अब देखो droplets of a liquid are more spherical in shape than larger drops of same liquid. Because देखो बेटे ऐसा है, जितना बड़ा droplet हो जाएगा उसमें force of gravity उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, because उसका weight, self weight. तो जितने छोटे droplets हैं उसमें surface tension के कारण जो force है वो ज्यादा predominant है. Then when compared in a larger drop, लार्जर ड्रॉप में ग्रेविटी का भी सिग्निफिकेंस आ जाता है. तो अब हम चॉइसेस देखेंगे बेटे. फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. बी पार्ट देखिए बेटा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्रिडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दिस इज करेक्ट. कैसे बेटे, देखो छोटे ड्रॉपलेट में फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्रिडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो आंसर इज B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next बेटे 15th क्वेश्चन देखेंगे. When the temperature increases, the angle of contact of a liquid. बेटे देखो ऐसा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं लिक्विड का, तो उससे असर किस पर पड़ता है, उससे there is a change in surface tension. The surface tension it tends to decrease when you increase the temperature. तो जो angle of contact है liquid का, it will now decrease because the surface tension force has decreased. So answer is C part. वो घट जाएगा. Answer is C part. Next बेटे 16th question. Next बेटे 16th question. Now what will be the height of liquid column in the capillary on the surface of the moon if it is H on surface of earth. So हमने बेटे पता करना है कि अगर हमारे को कोई कैपिलरी ट्यूब दे रखी है और सरफेस ऑफ अर्थ पे, अगर अर्थ का सरफेस कंसीडर किया जाए, तो अर्थ के सरफेस पे उस कैपिलरी में लिक्विड की जो हाइट है दैट इज स्मॉल h. तो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा by r rho into g. इसका मतलब हुआ क्या कि h is inversely proportional to g. अब आप इसको कहां ले गए, मून पर ले गए कैपिलरी ट्यूब को, तो वहां पे हाइट h डैश मान लीजिए. तो h डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन g by 6, दैट इज 6 by g. सो h डैश डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो यू विल गेट व्हाट, h डैश इज इक्वल टू h इंटू 6. h डैश इज इक्वल टू h इंटू 6. सो देखिए ये आंसर क्या बनता है बेटे, 6h बन गया आंसर. आंसर इज सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 17th.
Question number 17th. A disc of paper of radius capital R has a hole of radius small r. It is floating on a liquid of surface tension T. It is floating on a liquid of surface tension T. The force of surface tension on the disc in the downward direction is. देखिए बेटा, एक ऐसा है, एक पेपर की डिस्क है, इस पेपर की डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और बेटे इसमें एक होल है ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इसमें एक होल है ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब देखिए बेटा, हमने इसमें सरफेस टेंशन की फोर्स निकालनी है डिस्क के ऊपर। सो डिस्क के ऊपर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। एक तो बेटा ये वाली लेंथ है, दूसरी ये वाली लेंथ है। सो ये हो जाएगी बेटे, फोर्स विल बी T इंटू 2 पाई R प्लस T इंटू 2 पाई स्मॉल r। ये कितना हो गया बेटे, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू T इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये कितनी होगी, 2 पाई इंटू T इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 18th क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ड्यू टू कैपिलैरिटी एक्शन ए लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। सो अगर कैपिलैरिटी एक्शन कंसीडर किया जाए, ठीक है जी बेटे, तो लिक्विड राइज कब करेगा, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा, अक्यूट। एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि अक्यूट है तभी लिक्विड राइज करेगा। आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन बेटे, question number 19th. A number of small drops of mercury coalesce adiabatically to form a single drop. The temperature of drop, बेटे देखो, काफी सारे small drops of mercury they join together to form a larger drop, then the temperature of drop is। सो देखो बेटे, ऐसा है कि जितने छोटे ड्रॉपलेट्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द बिग ड्रॉपलेट दैट इज फॉर्म्ड। सो जो एक्सेस एनर्जी है दैट विल रेज द टेम्परेचर ऑफ द बिगर ड्रॉपलेट। सो द टेम्परेचर विल ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेस। आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए बेटा, a soap bubble surface tension T is equal to 30 into 10 power minus 3 Newton per meter has a radius 2 centimeter। so radius कितना है बेटे, 2 centimeter। the work done in doubling the radius is। सो बेटा हमने इसी सोप बबल का रेडियस को क्या करना है, डबल करना है। तो कितना वर्क डन हमने वी वांट टू कैलकुलेट। अब देखिए बेटा, इस तरह है कि इनिशियली वी आर हैविंग द सरफेस एनर्जी एज 4 पाई r स्क्वायर surface area into surface tension T, but there are two free surfaces, so I will multiply by 2. This is initial surface energy. फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 4 पाई, दैट विल बी 2 टाइम्स 4 पाई इनटू। अब बेटा देखिए, इस समय जो रेडियस है दैट विल बी 2r का स्क्वायर इनटू t। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, ये 2r का स्क्वायर कितना, 4 4 16 32 पाई r स्क्वायर इनटू t। ठीक है बेटे, और पहले सरफेस एनर्जी ये थी। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी फाइनल
माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। सरफेस एनर्जी इनिशियल कितनी है बेटे 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। सो 32 माइनस 8 कितना हो गया बेटे 24 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। सो दिस विल बी 24 इंटू बेटे 22 बाई 7 इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 2/100 इंटू 2/100 इंटू सरफेस टेंशन दैट इज 30 इंटू 10 की पावर -3, 30 इंटू 10 की पावर -3। सो ये जो आंसर बनेगा दिस आंसर विल बी A part, that is 9.1 into 10 power -4 joule, 9.1 into 10 power -4 joule. So answer is 9.1 into 10 power -4 joule. So answer is A part. Next bete 21st question. Next 21st question देखेंगे बेटे. Water rises in a capillary up to a certain height such that the upward force of surface tension balances the force of 75 into 10 power -4 Newton due to the weight of water. If surface tension of water is 6 into 10 power -2 Newton per meter, the internal circumference of the capillary must be, considering theta is equal to 0 degree, that means angle of contact is given to us as 0. Angle of contact is given to us as 0 in this particular situation. आप देखिए बेटा इसको हम करेंगे प्रॉब्लम को. नाउ अगर हमने लिक्विड में कैपिलरी में लिक्विड राइज देखा हो तो लिक्विड राइजेस बिकॉज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. नाउ बेटे देखिए नाउ चारों तरफ से इस तरह से फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टेंजेंशियली एक्ट कर रही है. सपोजिंग इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, then this tension can be resolved into two mutually perpendicular components. One is t cos theta and another is t sin theta. तो ये जो surface tension t sin theta component है, this will get cancelled out and there will be net 2 t cos theta. This t cos theta will be acting upon the circumference of the tube. जितना surface बन रहा है circumference of the tube पर, उस पर उसमें surface tension T cos theta के कारण force लगेगी in the upward direction due to which the liquid rises. So the force in the upward direction will be 2 pi r into T cos of theta, because force क्या होती है बेटे surface tension into length. अब surface tension which is T sin theta, surface tension का जो component है T sin theta that has cancelled out और net component क्या बचा हमारे पास T cos theta. T cos theta के कारण नेट फोर्स कितनी होगी दैट विल बी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. लेंथ क्यों बेटे क्योंकि ट्यूब में आप इमेजिन कीजिए जो ट्यूब का सरकमफरेंस है उसी पर ही लिक्विड है और उसी लेंथ पर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगी. सो 2 पाई r इंटू टी cos थीटा इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द लिक्विड. जो ये लिक्विड उठ गया इसके वेट को 2 पाई r t cos थीटा बैलेंस कर रहा है और ये वेट कितना है बेटे 75 इंटू 10 की पावर -4. ठीक है बेटे. सो नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू r, तो इंटू बेटे r ये तो हमने निकालना है, सरकमफरेंस निकालनी है, 2 पाई r हमने निकालना है और थीटा हमको 0 डिग्री दे रखा है. तो इसका मतलब 2 पाई r विल बी इक्वल टू 75 इंटू 10 की पावर -4 ओवर t cos 0. cos 0 इज 1. सो आपके पास सरफेस टेंशन कितनी दे रखी है बेटे 6 इंटू 10 की पावर -2. तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2 और 75/6, तो ये हो जाएगा 6 1 6, 12.5 इंटू 10 की पावर -2 दीज मैनी मीटर्स. सो आंसर क्या बना बेटे आंसर इज डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन. The amount of work done in increasing the size of a soap film 20 into 20 centimeter by 6 centimeter to 20 centimeter by 10 centimeter is
और जो सरफेस टेंशन है दैट इज गिवन टू यू एज, जो सरफेस टेंशन T है दैट इज गिवन टू मी एज 0.030 न्यूटन पर मीटर। और देखो बेटे, अब सोप फिल्म है ना, तो देयर विल बी टू फ्री सरफेसेस, सो नाउ द वर्क डन is equal to change in surface energy, work done is equal to change in surface energy, so change in surface energy कितना हो जाएगा, 2 times change in surface area, surface area कितना हो गया बेटे 200 फाइनल एरिया है माइनस 120 these many centimeter square into 10 की पावर -4 और कर देंगे to convert this into meter square into क्या जी बेटे into the force of surface tension, into force of surface tension कितनी है 0.03, तो ये क्या हो गया, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, टू फ्री सरफेसेस है तो दो सरफेसेस का एरिया टर्न हुआ है, चेंज हुआ है, और इनटू सरफेस टेंशन T दैट इज 0.03, सो ये कितना हो जाएगा बेटे 2 इंटू 80 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.03, सो ये कितना हो गया बेटे 2.3 2 at the 16 4.8 into 10 power -4 joules, 4.8 into 10 power -4 joules, so ये आंसर देख लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए, that is answer is C part, answer is C part. Next बेटे 23rd question, next बेटे देखिए 23rd question, a suction pump at ground level can draw water from a well whose depth of water level is, बेटा एक सक्शन पंप कितनी डेप्थ से पानी उठा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि एक सक्शन पंप कैन पिक अप वाटर फ्रॉम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ए हाइट ऑफ 10.2 मीटर्स, 10.2 मीटर्स डेप्थ से पानी सक्शन पंप पानी उठा के ऊपर फेंक सकता है, इट कैन पिक वाटर फ्रॉम दैट लेवल, सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट, इट इज लेस देन 10.2 मीटर, मतलब ज्यादा 10.2 मीटर, उससे कम हो तो पानी उठ जाता है। नेक्स्ट बेटे 24th क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटे 24th क्वेश्चन, in order that a floating object be in a stable equilibrium, its center of buoyancy should be vertically above its center of gravity, below its center of gravity, now horizontally in line with the center of gravity, may be anywhere. Now बेटे देखिए, whenever there is a floating object, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो जगह है जहां पे कि सारा मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड है, और जहां पे कि सारी ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हमसे वो पूछ रहा है कि एक होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी, नो बेटे जरूरी नहीं कि बॉडी पूरी तरह से इमर्स्ड हो, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज दैट पॉइंट एट विच whole of the buoyant force is supposed to be acting. अगर हमारे पास कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हो और उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि नीचे हो, सेंटर ऑफ बॉयंसी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड हो, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन, देन मोस्ट स्टेबल, देन द ऑब्जेक्ट इज मोस्ट स्टेबल, so it is stable equilibrium में है वो, it is floating in a stable equilibrium, so answer is 24th का answer is A part, vertically above its center of gravity. Next बेटे, next question 25th question, next question देखिए बेटे 25th, a cylinder is filled with a liquid of density D up to a height h. If the cylinder is placed in a lift moving with a downward acceleration A, the pressure at the bottom is. So देखिए बेटा ऐसा है, हमारे पास एक लिफ्ट में एक सिलेंडर है और लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन कैसे हो रही है उस लिफ्ट की, डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A, और
इसमें h हाइट तक का लिक्विड हमने भर रखा है। अब देखिए बेटा, पूरे लिक्विड के ऊपर सूडो फोर्स ऐसे लगेगी, तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑन द लिक्विड इनसाइड विल बी लाइक दिस, और बेटा g जो है वो ऐसे है, सो नेट एक्सेलरेशन विल बी g minus a, so net downward force will be decreased, so that means the pressure earlier it used to be at h into d into g hydrostatic pressure, अब कितना हो जाएगा effective acceleration g minus a, h d into g minus a, so answer क्या हो गया बेटे, answer is C part, answer becomes C part. Next बेटे, next question 26th question देखेंगे. A piece of ice is floating in a jar containing water. When ice melts, the temperature of water falls from 25 degree to 4 degree centigrade. Then the level of water, A part rises, B part falls, C part remains unchanged, D part changes erratically. So अब देखिए बेटा, एक हमारे पास ऐसा कि आइस का पीस है, और what is happening is that आइस मेल्ट्स, और आइस मेल्ट करती है, और जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो गिर जाता है, जो पानी में जिसमें वो तैर रही थी वो गिर जाता है फ्रॉम 25 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस. नाउ देन द लेवल ऑफ वाटर, तो लेवल ऑफ वाटर पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है बेटे. अब देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा स्पेशल केस ऑफ टेम्परेचर है जिसपे कि वी से द वाटर्स डेंसिटी इंक्रीजेस, वाटर की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है बेटे, वाटर की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है. अगर वाटर की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, देन द व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर, इट विल fall. Then the level of water will fall when whole of the ice has melted and the water is at 4 degree centigrade. So density बढ़ गई तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगी. वॉल्यूम घट गई लिक्विड की तो वाटर की डेंसिटी, वॉल्यूम घट गई तो वॉल्यूम घटने पर what is going to happen, there will be less height that the water will now show. So it means the level of water will fall. Answer is B for Bombay. Next question बेटे 27th question. A boy is carrying a bucket of water in one hand and a piece of plastic in the other. After transferring the plastic piece to the bucket, the boy will carry less load than before, more load than before, same load as before, either less or more load depending on density of plastic. तो एक बच्चा है बेटे और वो क्या कर रहा है, ही इज कैरिंग ए बकेट ऑफ वाटर, उसके पास एक बाल्टी है पानी की और उसको वो लेकर जा रहा है इन वन हैंड, एंड दूसरे हाथ में उसके एक प्लास्टिक का पीस है, दूसरे हाथ में उसके एक प्लास्टिक का पीस है. फिर वो क्या करता है, वो उस प्लास्टिक के पीस को इस पानी की बाल्टी में डाल देता है. तो नाउ वी आर टू टेल कि क्या अब वो कम भार उठा रहा है या वो सेम भार उठा रहा है. अब देखिए बेटा, जब तो उसके एक हाथ में प्लास्टिक का पीस था और बाल्टी थी, मान लो बाल्टी का वेट है W और जो ये प्लास्टिक का पीस वो कैरी कर रहा है इसका वेट है स्मॉल w, तो तब तो वो W प्लस स्मॉल w भार उठा रहा था. अब जब हमने इसको बाल्टी में डाल दिया, जब हमने बाल्टी में इसको डाल दिया तो क्या हुआ बेटा, ये प्लास्टिक का पीस फ्लोट करेगा. फ्लोट करने वाली स्थिति में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वेट और पानी इसको एक अपथ्रस्ट और जनरेट करेगा बेटे, ठीक है बेटे. नाउ देखिए अपथ्रस्ट विल बी कैंसल्ड, ठीक है, बाय द रिएक्शन. इफेक्टिवली द डाउनवर्ड फोर्स अगेन इज W प्लस W. अपथ्रस्ट क्या है, वो तो पानी, वो तो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट लग रहा है, लेकिन आदमी के हाथ पर अपथ्रस्ट नहीं लग रहा. आदमी के हाथ पे भी क्या बाल्टी का भार है और ऑब्जेक्ट का भार है.
upthrust is acting on a different object. You see the upthrust is acting on a different object. So जो आदमी है उस पर तो net force अभी भी क्या है, weight of the बाल्टी plus weight of the object. So that is W plus small w. That is equal to W plus small w.